السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اب بھارت میں مسلمان کیا کرے، اس موضوع کو لے کر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 7 ہے، کیونکہ 4 باتیں کی گئی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے۔ 3 باتیں، اور چوتھی تھی کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم نے 3 باتیں جو ہماری سمجھ میں آیا وہ میں نے بیان کیا۔ وہ کوئی اچھے آپ نہ یہ ہے کہ آپ اس پر عقیدہ رکھیں تو نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، ایک ہمارا اپنا آئیڈیا ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ کوشش کیا ہے کہ قرآن حدیث سے اس کو مدلل کریں۔ تو مسئلے کا حل کیا ہے، اب یہ اہم بات ہے۔ عمومی طور پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ ایک بڑا طبقہ ہماری تقریر جو دیتا ہے وہ علماء کرام ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو 3 طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حل کرنے والی جو ذات ہے وہ رب ذوالجلال کی، سب سے پہلے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ پہلا طریقہ، کیونکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر چھوٹا سا مسئلہ بھی پیش آ جاتا تھا، تیز آندھی بھی چل جاتی تھی، بجلیاں بھی کڑکنے لگتی تھی، تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اپنے اللہ سے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ پہلا طریقہ ایک مومن کا ہوتا ہے۔ مومن کا دوسرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے جو ظاہری چیزیں ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جو اسباب ہیں، اس مسئلے کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اسباب ظواہر کیا ہے، کہ آدمی اسباب کیا اختیار کرے، صحیح سبب اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہے حبیب مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کو مجلد کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی کہ اللہ پر بھروسہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی انہوں نے سمجھا بات کو، کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے، تو اللہ چاہے گا تو اونٹ دروازے پر رہے گا، اللہ چاہے گا چلا جائے گا، اور اونٹ کو باندھنے کی ضرورت نہیں، باندھیں گے کیا ہوتا، اللہ کا نہیں چاہے گا تو اللہ وہ بھی چلا جائے گا۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم توکل علی اللہ، پہلے اونٹ کو باندھو، سبب اختیار کرو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ کا بھروسہ۔ اونٹ پر یہ جملہ میں بولنے جا رہا ہوں، اونٹ کو باندھنے کے بعد اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اب اونٹ کبھی بھی ہمارے دروازے سے نہیں جا سکتا، یہ شرک ہے۔ اونٹ باندھنے کے بعد بھی اونٹ آپ کے دروازے سے غائب ہو سکتا ہے۔ مومن میں اور کافر میں جو بہت سے فرق ہیں، اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ مومن سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی اپنے رب کے اوپر توکل کرتا ہے۔ کافر سبب اختیار کرنے کے بعد اپنی کالر کاٹتا ہے کہ دیکھتے کون ہے بھائی کالر۔ یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہے مسئلے کے حل کے لیے، کہ اسباب ظاہری کو اختیار کرنا۔ اور تیسرا مسئلے کا حل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وجہ سے مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس مسئلے کی طرف توجہ خاص دینا۔ جب یہ 3 باتیں آپ اختیار کریں گے تو جس
मसले से आप जूझ रहे हैं वो मसला क्या हो जाएगा। ये एक बुनियादी उसूल है जो आपके सामने है। तब सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान किया कि इन्नहा सतकूनु फितना, कि करीब आज़माइशें आएंगी। सहाबा ने पूछा, सहाबा में क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वमल मखरज मिन्हा या रसूल अल्लाह। ये नहीं पूछा कि फितना कौन लाएगा, फितना कैसा होगा, फितना कब होगा, ये सवाल नहीं किया गया। सवाल ये किया गया कि अल्लाह रसूल ये बताइए कि उससे निकलने का तरीक़ा कार क्या होगा, कैसे। आपने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब मसले को हल करेगी, अल्लाह की किताब से मसले को हल करना। फिर आपने लंबी हदीस बयान फरमाई किताबुल्लाह की शान में, एक एक जुमले बयान फरमाए। तो सबसे पहला मसले का हल क्या है कि अल्लाह की किताब को जिंदगी में अपने ढालने की फिक्र करें। किताबुल्लाह में दो तरीके के अहकामात हैं, कुछ फज़ाइल हैं, कुछ तारीख़ी बातें हैं, कुछ नसीहत की बातें हैं। लेकिन जो खिताब है, ऑर्डिनेंस है, अहकामात है, एक हुक्म सरकार से, हुकूमत से, कि इस्लामी हुकूमत हो तो मसला ऐसे हो। एक हुक्म जो है वो हमसे डायरेक्ट कहता है, जैसे कहता है कि नमाज जो पढ़ना है वो हमारा ज़ाती अमल है, ये सरकार से कोई इसका ताल्लुक नहीं। जुर्म की सज़ा सरकार देगी, आपके पास सरकार इस्लामी हुकूमत नहीं है, आप। लेकिन जो डायरेक्ट हमारी ज़ात से खिताब है, कहता है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि लोगों आपस में एक दूसरे की ग़ीबतें नहीं किया करो। कहता है वला तजस्ससू, ऐ लोगों किसी की टोह में मत पड़ो, उसके घर में पका कौन है, आया कौन है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हमसे डायरेक्ट खिताब है। रोज़े के बारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, के ईमान वालों पर रोज़ा फर्ज किया गया है, लिहाजा इसका ताल्लुक हमारी ज़ात से है। ऐसे अहकामात पर जानबूझकर अमल अगर छोड़ा जाएगा तो मसला कभी हल नहीं होगा। मसले का पहला हल कि अल्लाह ने जो बातें हमसे कही हैं वो आप हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% लोग नेक हो जाएंगे, 100% लोग नेक कभी नहीं होते, कभी नहीं होंगे। अगर 100% लोग रहेंगे तो क़यामत कैसे आएगी। क़यामत तो आएगी जब एक भी नेक नहीं रहेगा, तो ये फीसद तो बढ़ता ही रहेगा, हमेशा बढ़ेगा। बदमाश लोगों का, शरारत करने वालों का फीसद बढ़ता रहेगा। तो वो जो ज़ाती तौर पर अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, और उसमें भी वो हुक्म जिसमें हमारी ज़ात का मफाद और शरीयत ये दोनों आमने सामने खड़ी हो गई। शरीयत एक बात कहती है, हमारा फ़ायदा एक बात कहता है। ऐसे मौके पर आपका और हमारा अमल क्या है, वही असल मोमिन का फीसद है हमारे अंदर। फिर से जुमले को सुन लें, जिसमें मफाद हमारा नहीं टकराता है और अहकाम एक होते हैं, उस वक्त हमारे लिए अमल करना आसान होता है। जहाँ मफाद सामने हो, हुक्म इलाही एक हो, उस वक्त आपने किसको माना है वही आपका दीन है। नींद कह रही है सोया जाए, हुक्म इलाही कह रहा है कि नमाज पढ़ी जाए। बात किसकी मानी गई है? आपका खुदा वही है जिसकी बात मानी है। इसीलिए कुरान करीम ने कहा कि मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, कि जिसने अपने आप को, अपने नफ्स को अपना अल्लाह मान रखा है, ये वही अल्लाह है। इसकी पूजा हर वक्त होती है। बकिया जो गैरुल्लाह है, सूरज है, चांद है, दरख्त है,
इनकी पूजा तो वक्ती तौर पर लोग करते हैं, जब जाते हैं वो करते हैं। लेकिन ये जो हमारा खुदा है इसकी पूजा क्या होती है? हर लम्हा होने के चांसेस होते हैं। मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमको मालूम है कि ये रास्ता जाने का है, आने का नहीं है, लेकिन हमको फायदा ये है कि अगर हम थोड़ी दूर चलेंगे तो हमको कटिंग मिल जाएगी। लिहाजा हम अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं? सामने वाले को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम अपने नफ्स के ताबे हैं। लिहाजा कुरान मजीद पर अमल में, खासकर वहाँ पर जहाँ पर किताबुल्लाह का हुक्म, अल्लाह के अहकामात और हमारा मफाद आता है, उस वक्त आप किसको अमल करते हैं? भाई लोग विरासत क्यों नहीं दे रहे पहले? अगर आपसे पते भैया भाई साहब सोएंगे तो आपको भी नहीं देते, न सोते हैं न सोने देते। हम बहन को विरासत क्यों नहीं देते? हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमको मालूम है कि 4 बीघे में, 4 एकड़ में अगर 1 एकड़ हम दे देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 3 एकड़ बचेगा। भले आप नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, तस्बीहात पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपने किया क्या है? मफाद चूंकि पैसे का है, सबसे बड़ा मफाद क्या होता है? 2 ही मफाद दुनिया में बड़े होते हैं, पैसे और जान। पैसा मफाद है, सब कुछ करके सारी दीनदारी अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मफाद को कुर्बान नहीं करते। इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि आपकी सारी दीनदारी बेकार जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। हम लोग तकलीफ करने वाले कह देते सब बेकार है, बेकार नहीं होता है, सवाब सबका मिलता है। ये एक अलग बात है कि उसका गुनाह कितना बड़ा हुआ है, घटाने के बाद मालूम होगा आप कितने पानी में। ये बात, इसी का नाम हिसाब है, इसी का नाम यौमुल क़ियामा है। तो उस वक्त मालूम होगा कि हम किसकी इबादत करते हैं, किसकी बात मानते हैं। दूसरी चीज कि कम से कम का दर्जा ये है कि जो बात कुरान हदीस में मना है वो ना करें। ये मोमिन का आखिरी दर्जा होता है। मनहियात मना की गई चीजें अल्लाह के जरिए, अल्लाह के रसूल के जरिए, मोमिन को उस पर कभी अमल नहीं करना चाहिए जो चीजें मना की गई। आला दर्जा तो ये होता है कि अहकाम इलाही और हबीब मुस्तफ़ा का तरीका जिंदगी में अपनाएं। ये एक कदम ऊपर की बात है। निचला कदम ये है कि हम जो चीज मना है वो ना करें। अब क्या हो रहा है मुसलमानों में कि जो चीजें मना है वो हमारे जिंदगी में दाखिल होकर एक हमारी जिंदगी का जुज़ बनती जा रही है। मनहियात इस्लाम हमारी जिंदगी का एक जुज़ बनता जा रहा है। अब कल आपके गांव में बारात आई, 2 बारात आई, दोनों बारात वालों ने हबीब मुस्तफ़ा की खूब मुखालफत की धज्जियां उड़ाई, खूब दुकोने लगाए। काफिर का जब अमल किया जाता है तो काफिर जहां जाता है वहां आपको भी जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ट्रेन में बैठे और आप उस ट्रेन में बैठकर ये तस्वीर करें कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और ये कलकत्ता जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। ट्रेन जहां जा रही है वहीं जाना है आपको। नहीं, हमने सीट घुमा दिया है, हम लखनऊ जा रहे हैं, इसकी सीट इस तरफ है, ये कलकत्ता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। एक ट्रेन के मुसाफिर कहाँ जाएंगे? एक जगह जाएंगे। काफिर का काम करने वाला मुसलमान भी अगर काफिर का काम कर रहा है तो काफिर क्या जाएगा, वहां जाएंगे, आप भी जाएंगे। ये तो मोटी मोटी बातें, तो कोई बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी बुद्धि लगाना है, बहुत अकल की जरूरत है। सीधी सी बात है। ये जो हो रहा है ये खतरनाक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। और हो क्यों रहा है? हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे सब लोग यहां से बोलने लगे हैं सारी मसाजिद से, तो ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाद यूपी के बाद शहरों में ऐसा हुआ
कि सारे मसलक के उलमा ने तय कर लिया कि अगर पटाखा फोड़ा गया तो हम निकाह नहीं पड़ेंगे, अगर डीजे बजा हम महफिल में तुम्हारी नहीं आएंगे। मजबूर हो गए पब्लिक मजबूर हो गई, और मौलाना की बात उन्होंने मानी। अल्लाह की बात माने ना माने, लेकिन बाइकाट की बात जरूर मानते हैं। ये जो कैफियत हो रही है मनीयात पर अमल की ना, जैसे औरतों का बारात में आना, ठीक है, फतवा लोग पूछोगे कहेंगे मुबाह है, लेकिन बेपर्दा आना मुबाह है क्या? हमको तो मालूम भी नहीं था, ये नहीं मालूम था कि औरतें नहीं आती, मालूम था हमको, ये नहीं मालूम था कि आती हैं और फिर यहाँ पर ड्रेस बदला जाता है, फिर दूसरा ड्रेस लाया जाता है, और अजीब अजीब कहानियां लोगों ने सुनाई। ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये अच्छे लक्षण नहीं है, खतरनाक, और सब समझ में आएगी। कल भी बताया था, सब समझ में आ जाएगी बात, लेकिन समझ में आने से पहले आप लोगों का एक मुहावरा है गाँव वालों का कि अब पछताए का होत है जो चुड़िया चुग गई खेत। ये चुड़िया के खेत चुगने से पहले अगर आप होशियार हो गए तब तो वाकई में मोमिन है, वरना ठीक है, सभी लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसके अंदर भी जान है हम भी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मसला हल नहीं होगा। ये पहली बात कहना चाहते थे। दूसरी बात, जमहूरी मुल्क में दो तरीके के मुल्क होते हैं इस वक्त, या बादशाहत होती है या जमहूरियत होती है। जमहूरी मुल्क में जमहूरी अंदाज में मसले को हल करने की फिक्र करनी चाहिए। अभी देखिए, दिन पर दिन एक न एक दिन एक दावा हो रहा है कि फला मस्जिद जो है वो मंदिर की, ऐसे अभी तो बहुत होंगे, अभी तो शुरू हुआ है। हमको तकलीफ बहुत है, गलत हो रहा है, जो लोग भी सही है उनको भी तकलीफ है कि गलत हो रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान, गैरों को भी तकलीफ है कि ये सब कुछ जो हो रहा है देश में, देश के लिए अच्छा। आपको ये नहीं मालूम है कि इस मसले का हल क्या है। बैठते हैं चार आदमी, सोशल मीडिया पे देखते हैं, खूब बकवास कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये गलत है। आपके पास उस मसले का हल क्या है? ये कोई बता रहा है? चिल्ला रहे हैं। मसले का हल जमहूरी अंदाज में तलाश करें। एक छोटा सा मसले का हल बताता हूं। ये जमहूरी मुल्क है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जो भी सरकारी जमीनें होती हैं, कोई भी सरकारी जमीन हो, ग्राम समाज की हो, कोई भी जमीन, कोई सरकारी ऑफिस बना हो उसके नाम हो, जो भी सरकारी जमीनें होती है, किसी भी सरकारी जमीन में किसी भी धर्म वाले को अपनी इबादतगाह बनाने का हक नहीं। कौन सी सरकारी जमीन अब बची है जिसमें इबादतगाह न बनाई गई हो? पुलिस स्टेशन है, तहसील है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, जितनी भी सरकारी जमीनें हैं सब में मंदिर बनी हुई है। ठीक है, आप मसले का हल ये था जमहूरी मुल्क में कि पूरे भारत के मुसलमान अपने इलाके में सिर्फ ये काम करते कि एक मुकदमा कायम करते, एक टीम होती, एक तहसील में एक टीम होती कि जहां जहां ऐसी चीजें जो जमहूरियत के खिलाफ होंगी हम क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। कोई मुकदमा भारत की किसी अदालत पे नहीं है कि साहब फला पुलिस स्टेशन में मंदिर क्यों बनी, और अगर मंदिर बनी तो फिर मस्जिद की भी इजाजत दे, चर्च की भी इजाजत दे और गुरुद्वारा की भी इजाजत दे। अभी अगर ऐसे 2000 10,000 केस कायम हो जाए, ये जो आवाज उठ रही है बंद हो जाए। जमहूरी मुल्क में ये बात बहुत जरूरी होता है कि मसले का हल जमहूरी अंदाज में कैसे आप तलाश कर रहे हैं। बातें समझें, हम चिल्लाते हैं लेकिन मसले का हल खूब आपको न्यूज जो इतनी ज्यादा दी जाती है, आपको अंदर से और ज्यादा टेंशन में डालने के लिए किया जाता है। एक आदमी एक मुसलमान को मारते हैं, देखा होगा वीडियो में। अच्छा, वो वीडियो बनाया कौन है बाबू? बनाया किसने? जब एक आदमी को एक आदमी मार मार के मार दिया, मतलब मर गया, बनाया किसने वीडियो?
बनाया जो मुसलमान मारा जा रहा है, वो तो बना नहीं पाया। बनाया किसने? कब सोचा आपने? वो बनाया गया है। क्यों? अगर उसको छुप करके कि हमारा राज छुपा रहे, जो मर्डर करने वाला होता है वो कभी बताता है कि मैं मर्डर किया हूँ? ये बता रहा है कि मैं मारा हूँ। क्यों? मार करके वीडियो जब आपको और वायरल करेगा, सबको पहुंचेगी, तो आप इरिटेट होंगे ना, आपको अंदर से तकलीफ होगी ना। वही तकलीफ पहुंचाना उसका मकसद है। वो भले फांसी पे चढ़ जाए, इससे पहले आपको तकलीफ पहुंचा दे करोड़ लोगों को, वो उसमें कामयाब हो गया। और आप इतने बड़े और हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वो वीडियो जब हमको आता है तो खट से हम अपने दोस्त को भेजते, तुम भी तकलीफ पहुंचा रहे हो। जो उसका काम था वो तुमने किया, तुमने वही काम किया। वही तो उसका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और मुसलमान अंदर से क्या हो जाए, परेशान हो। जो उन्होंने काम किया वही तुमने भी किया। हमको इतना भी नहीं पता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। ये कौम की बेहिसी की अलामत है कि जिसको ये भी ना मालूम हो पावे कि किस काम में हमारा फायदा है और किस काम में हमारा नुकसान है। वो इस बात की भी तमीज खो बैठी है और धड़ाधड़ वायरल कर रही है, फला इमाम को मारा गया। उसका वही मकसद था कि आपको इमाम को मारा गया है, आपको तकलीफ पहुंचे, इसलिए वो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। बस तो जमहूरी अंदाज में, जमहूरी मुल्क में काम करें। एक तरीका आपको क्या बताया कि ऐसे जितने मसाइल हैं आप अपनी टीम तैयार करें। मस्जिद में पैसा जिस तरीके से लगाते हैं, मदरसे में जिस तरीके से पैसा लगाते हैं, ऐसे ही उस टीम के बनाने में पैसा लगाएं और वकीलों को और खासकर गैर वकीलों को हायर करके ऐसे मुकदमात कायम किए जाएं ताकि जमहूरियत लोगों को मालूम हो किसे कहते हैं, तब किस किस्म के वाक़यात पर कंट्रोल किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत महफूज रहती है वोट के सुरक्षित रहने से। सुरक्षित समझते हैं? वोट जितना आपका महफूज होगा उतनी जमहूरियत मजबूत होगी। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपका वोट एक जगह पड़ेगा तो सामने वाला आपके सामने आपको सलाम मारेगा। और अगर उसे ये मालूम हो जाए कि मुसलमानों के वोट एक जगह नहीं पड़ते हैं, अलग अलग जगह पड़ते हैं, ज़्यादा जमहूरियत में आपकी मिसाल और हमारी मिसाल तिनके से भी बदतर कोई हैसियत नहीं है। अब जो कोशिश की जा रही है, जो खुदा करे कि वो कोशिश नाकाम रहे, कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह मुसलमानों से वोट का जो हक है वो क्या कर लिया जाए, वो छीन लिया जाए। छीना कैसे जाएगा? मैंने आपको बताया था पूरे संविधान में एक धारा है कि अगर 2/3 लोग एक बात को कहेंगे पार्लियामेंट में तो हर हाल में वो बात कानून बन जाएगी। लिहाजा वो 2/3 लोग मिल करके कह देंगे कि इस देश में मुसलमानों को वोट देने का हक नहीं है, वो पास हो जाएगा। आप वोट देंगे नहीं सकते। जो आपकी वैल्यू है उस वैल्यू की अभी कदर कर ले और मामले को संभाल लें। वोट जमहूरियत में एक बड़ी हैसियत रखता है। ये दूसरा तरीका होता है कि जमहूरी मुल्क में जमहूरी अंदाज करने का। तीसरी चीज, लोकतंत्र महफूज रहता है और लोकतंत्र को चलाने वाले डरते हैं एहतिजाज से। किससे? एहतिजाज से। एहतिजाज मुनज़्ज़म अंदाज में, देरपा शऊरी अंदाज में किस चीज पर एहतिजाज करना है और किस चीज पर एहतिजाज नहीं करना है, ये बात मालूम होनी चाहिए। ये जो हिजाब का मसला कर्नाटक में उठा, पहले जिस शहर से उठा, ये अगर अदालत में न ले जाया गया होता तो ये मसला उठता ही नहीं। मुसलमानों को ये पता ही नहीं हो पाया कि ये मसला अदालत में ले जाने वाला है या नहीं। कम से कम जमहूरी मुल्क में इतना तो शऊर रखा जाए कि भाई ये मसला एहतिजाज वाला है, ये मसला अदालत में ले जाने वाला है, या बैठ करके मसले को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। हमने, क्योंकि हम
उस आदमी की तकरीर अच्छी होती है आपकी निगाह में, वो शख्स दानिश्वर कहलाता है। जो जज्बाती अंदाज में आपको जज्बाती बना दे वो अच्छा आदमी है और अच्छी तकरीर करने वाला है। ये भड़काने की जो बात की जा रही है ये मसले का हल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मक्के में किस तरीके से बताया गया सब मालूम है। सहाबा ने आकर के कहा अल्लाह के रसूल ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, क्या हम लोग गलत हैं, कब आएगी अल्लाह की मदद। अल्लाह ने हुक्म दे रखा था अपने नबी को कि कुफू ऐदियकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं उठाना, इनको मारने दो, देखे कितना मारते हैं। अल्लाह के रसूल से जज्बाती तकरीर कोई कर सकता है? जज्बाती तकरीर कहाँ करना है, कब करना है, अगर ये तब मुकर्रिर को नहीं पता है तो खुद तो बर्बाद हो या ना हो, लेकिन तुमको जरूर बर्बाद करेगा, तुमको जरूर बर्बाद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बातें एकदम दूसरे तरीके की कहा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी क्या हुआ, ये इतनी जो तुमने देख लिया कि सुमैया को मार दिया गया और अम्मार बिन यासिर के साथ ये हो रहा है, बिलाल ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो दीन के नाम पर तुमसे पहले ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि लोहे की कंघियों से उनके पीठ के गोश्त निकाल लिए गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वक्त आता है तो लोगों से कहते हैं याद रखना कि अगर तुमने आंख दिखाई तो हम भी आंख दिखाने की पोजीशन में। एक तरीका होता है गुफ्तगू का। हमारे पास न बोलने वाले इस किस्म के हैं और न लिखने वाले इस किस्म के हैं। हम अगर ऐसी बातें करते हैं तो कहते हैं ये बुज़दिल आदमी है, ये मसलहत पसंद इतना है, ये बुज़दिल है। इससे ये नहीं मालूम है कि तरीक़े नबवी क्या है, और तरीक़े नबवी ही मसले का हल है। ये ईमान भी होना चाहिए और इसी पर अमल भी होना चाहिए। तो जमहूरी अंदाज में आदमी एहतजाज करे। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद का केस आप हारे, हिजाब वाला भी हार जाएंगे, हाई कोर्ट से हार चुके हैं। वजह क्या है? क्या आपके पास ऐसे लोग ही नहीं हैं कि जो आपके मसले को अदालत में खड़े हो करके सही बात कर सके? कर्नाटक में चल रहा था, जिस दिन हेयरिंग थी, जिस दिन समाप्त थी, उस दिन बुध था। जब मेरा कह रहा है हमारा वकील जो हिजाब के लिए बात कर रहा है, वो कह रहा है सर ये इन लोगों को हिजाब की इजाज़त दी जाए, इसलिए कल जुमा है और उसके बाद रमज़ान आ रहा है, ये दलील है तुम्हारी हिजाब की। जुमा से हिजाब का क्या ताल्लुक है? रमज़ान का हिजाब से क्या ताल्लुक है? ऐसे लोगों को तुमने ले जा करके अदालत में खड़ा किया है, ठीक है, जैसा है वैसा वो मुकदमा लड़ रहा है। आपके तलाक के मसले में तो आपके फेवर में कौन था? गैर मुकदमा लड़ रहा, जिसको तलाक की सही परिभाषा और स्पेलिंग नहीं मालूम है, वो तुम्हारा मुकदमा लड़ रहा। बाबरी मस्जिद के मुकदमे में आगे कौन था? वो लोग थे जिनको पता ही नहीं मस्जिद के अहकामात क्या है। जैसे आज एक बड़ी तादाद भारत में मुतवल्ली वो लोग हैं जो नमाजी नहीं है, मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मस्जिद में मेंबर हैं, मस्जिद का निजाम चलाने वाले हैं, पर वक्ता नमाजी नहीं है। तो जैसी मस्जिद चलनी चाहिए चल रही है, चलेगी। हमारी मस्जिद नबवी सबसे पहली मस्जिद, उसके मुतवल्ली कौन है? हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उन्होंने कहा नमाज पढ़ो तो कभी जिंदगी में नमाज छोड़ी उन्होंने? कभी नहीं छोड़ी। आपका मुतवल्ली क्या कर रहा है? नमाज छोड़। ऐसे ही बेशुमार चीजें हैं जो गलत अंदाज में हो रही हैं। लिहाजा ये जमहूरी अंदाज में मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। जमहूरी वोट को सुरक्षित करें, महफूज करें। नंबर 1, जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने का तरीका जाने।
नंबर 3, जो आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है और जमहूरियत में जो आपके संविधान आपके साथ है, उस संविधान, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आप दस्तूर भारत जो है उसके तहत आप भी एप्लीकेशन डालें, आप भी शिकायत करें, आप भी वकील करें, तब ये सब मसले जो है ना ये हल होने के चांस हैं। ये दूसरी चीज़ थी कि जमहूरी मुल्क में जमहूरी अंदाज में काम किया जाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब इसमें 3 बातें और या 4 बातें हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल बात करेंगे। बाकी